Pranam, Philosophy Optional Paper 1, Lecture 14. In today's lecture, we will discuss the later Wittgenstein stage. In the previous lecture, we had already discussed early Wittgenstein, and we had also talked about something called logical positivism. In the early Wittgenstein stage, one of his most important theories was picture theory, right? And how whenever somebody says something, the other person usually imagines it in the form of a picture. And what are the pitfalls, advantages, disadvantages of that theory. In the later Wittgenstein stage, you'll find a paradigm shift in Ludwig Wittgenstein's thought, and his second phase is much more informative, much more detailed. Okay? But whatever he wrote, whatever his thoughts were during the second phase, he passed away in 1951, and the thoughts were published posthumously, right? And in a book called Philosophical Investigations, in which there appears to be a movement from what he said in early Wittgenstein. And the movement is completely, in some cases, completely opposite to what he said in early Wittgenstein. Now, in later Wittgenstein, there are three major things that we need to study. The first is his concept of meaning and use. Okay. The second is his concept of language games and family resemblance. And the third is the private language argument, also called the critique of private language. In the sense, a private language cannot exist. But how does he define private language? That's from where we will start and try to prove that there can be no such thing as a private language. Language is common to all of this. Now, in this part, Wittgenstein emphasizes that the key to understanding, the key to knowledge is proper language. Understanding language, understand the meaning of the word, understanding the way the word is used, right? Discussing this theory would also remind you of the concept of common sense that we have discussed at an earlier point in this particular course. Okay? So, this is what we will be taking a look at. Again, just to revise, remember he was a German, right? He published his work in 1921, Tractatus, and he published this in 1953. And we have also seen what was the political condition of Germany and Austria, right? So, सबसे पहला point इसमें आप लिखिए. We are not going to write an introduction for Wittgenstein because we've already done that. सबसे पहला point लिखिए, एक table बनाइए. Tractatus to philosophical investigations. In this chart, we will see what was the transition and what was the impact of the transition. Okay. So when you talk about Tractatus, there is an emphasis on the realm of logic. This is the aspect which is emphasized the most in the Tractatus, that the picture has components and the components together make that picture, and you have the case of nonsense, right? You have the case of false propositions and so on. So in Tractatus, the basis of philosophy was trying to understand the logic. Philosophy was explored from the realm of logic. But when you come to philosophical investigations, it is examined through ordinary language. How is language used?
here the emphasis is on definitions. Emphasis is on definitions and analysis, right? Here the emphasis is on language games and family resemblance. Okay, here in Tractatus, if you read the Tractatus, it basically systematic philosophical writing. Systematic philosophical writing. Whereas this is written more in an aphoristic style. Aphorism मतलब proverbs, sayings, etc. तो ये उस स्टाइल में लिखा गया है और ये इस स्टाइल में लिखा गया है. So when you talk about the transition from Tractatus to philosophical investigations, the first 2 points are in the nature of understanding and the third point is in the style of writing. Okay? अब इसके बाद एक important term लिख लीजिए, dogmatism. ये term important क्यों है? Because during the 1940s when he again started thinking, he said that my work in the Tractatus was too dogmatic. Hence there was need for new investigations and new explorations. So it's very important to understand what Wittgenstein meant by the word dogmatism. तो आप लिख लीजिए, any conception which allows for a gap between question and answer, any conception which allows for a gap between question and answer such that an answer can be found at a later date, such that an answer can be found at a later date. तो ऐसा कोई भी परिस्थिति, ऐसी कोई भी परिस्थिति या ऐसी कोई भी अवधारणा जहां सवाल आपके पास आज है, सवाल आपके पास आज है, लेकिन आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज करके, जो भी लॉजिक का पावर है उसको यूज करके, जो भी फैक्ट्स है उसको यूज करके जवाब आज नहीं मिल सकता, जवाब भविष्य में किसी दिन पे मिलेगा. तो ये दो अवधारणा थी, अ गैप बिटवीन द क्वेश्चन एंड द आंसर, बिटवीन द डेट्स ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर. दिस इज व्हाट ही टर्म्ड एज डॉगमेटिज्म. ओके, डॉगमेटिक एक जनरल इंग्लिश वर्ड भी है विच मीन्स किसी अवधारणा को बिना उस पर सवाल उठाए अंधा होके किसी अवधारणा को फॉलो करना, टू फॉलो सम कॉन्सेप्ट ब्लाइंडली. दैट इज हाउ यू यूज द वर्ड डॉगमेटिक इन इंग्लिश. अगला पॉइंट लिखिए. As early as 1931, Wittgenstein labeled his own Tractatus as dogmatic. Labeled his own work Tractatus as dogmatic. Philosophical investigations was published posthumously in 1953. Philosophical Investigations was published posthumously in 1953. ठीक है, तो ये है द शिफ्ट. अब पहला हेडिंग लिखिए, मीनिंग एंड यूज. इससे उनका मतलब क्या है, व्हाट डज ही मीन,
लिखिए, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। पहला पॉइंट लिखिए, अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन, फॉर अ लार्ज क्लास ऑफ केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस में, फॉर अ लार्ज क्लास ऑफ केसेस, द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज इट्स यूज इन लैंग्वेज। The meaning of a word is its use in language। मतलब ऐसा नहीं है कि हमको मीनिंग पता है और उस पर्टिकुलर मीनिंग से हम उसको भाषा में उसका उपयोग करते हैं, नहीं, हम मीनिंग से यूज नहीं कर सकते। हमको पहले ये देखना है हाउ इज इट यूज्ड इन लैंग्वेज। यहां से हमको डिराइव करना है कि वर्ड की मीनिंग्स क्या हो सकती हैं। ओके, बिकॉज देर आर मैनी थिंग्स, ये चीजें क्या हैं हम देखेंगे। देर आर मैनी थिंग्स विच इन्फ्लुएंस अ वर्ड इन लैंग्वेज। तो एक शब्द अगर है, उसको आप कौन सी भावना से बोल रहे हैं, कौन सी इंटेंशन से बोल रहे हैं, राइट, उसका उसको कौन से पार्ट ऑफ स्पीच के फॉर्म में आप बोल रहे हैं, वर्ब फॉर्म में बोल रहे हैं या नाउन फॉर्म में बोल रहे हैं, इससे उस शब्द का मतलब बहुत चेंज होता है। इसलिए हमें ये देखना है कि किसी भी शब्द का उपयोग, ठीक है, भाषा में किस तरह से हो रहा है, और वहां से हमको डिराइव करना पड़ेगा कि उस शब्द के अर्थ क्या क्या हो सकते हैं। दिस इज व्हाट ही सेड। अब इसमें सेकंड पॉइंट लिखिए, दिस अंडरलाइंस अ चेंज, this underlines a change in perspective of Wittgenstein's thought. This underlines a change in the perspective of Wittgenstein's thought. क्या चेंज है? ये पहला पॉइंट। ये चेंज क्या है? मैंने बोला चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। पिक्चर थियरी में क्या था? मीनिंग एज अ representation, correct? This was what picture theory was about. Now he is talking about the meaning. इसका मतलब meaning is the crux of investigation। मतलब ये थियरी में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ड का मीनिंग किस तरह डिफाइन होता है, जबकि पहले क्या था? पिक्चर थियरी। पहले ये था कि आप जो भी बोलते हैं जिनका पिक्चर बनाया जा सकता है, अब उसके बाद उनको स्ट्राइक हुआ वो पिक्चर में भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो पिक्चर में भी तो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को कोई ना कोई वर्ड यूज कर डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वर्ड का मीनिंग तो जरूरी है ना। तो वो मीनिंग पे फोकस है कि वो मीनिंग क्या है और कैसे पता चलेगा हमको कि मीनिंग क्या है। सो दिस इज द शिफ्ट दैट पॉइंट नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट। तीसरा पॉइंट लिखिए, when investigating the meaning of words, when investigating the meaning of words, the philosopher
should look at and see while investigating the meanings of words. The philosopher should look at and see the variety of uses the world is put to. The variety of uses the world is put to. ओके, जो हमने पहले बताया था, पूछा था. The functions of a word are as diverse as the functions of these objects. The functions of the word are as diverse as the functions of these objects. मतलब he is trying to create an analogy, जैसा एक ऑब्जेक्ट को आप कई प्रकार से उसका उपयोग कर सकते हैं, वैसे ही एक शब्द का आप कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं. तो जब तक वो सारे उपयोग आपको पता नहीं चलेंगे, उस शब्द का अर्थ आपको पता नहीं चलेगा. जैसे अगर आपके पास से एक हथौड़ा है, उसको आप कई प्रकार से उसका उपयोग ऑब्लिक दुरुपयोग कर सकते हैं. वैसे ही शब्द है, हथौड़ा शब्द जो है ना, ये हथौड़ा शब्द के भी अलग अलग उपयोग होंगे. एक जिसमें से एक रहेगा वो ऑब्जेक्ट. और हम जनरली बोलते हैं आर्ग्यूमेंट अच्छा हो तो क्या हथौड़ा मारा है वगैरह. तो यू नो दैट्स द पॉइंट. जैसे ही उस ऑब्जेक्ट के अलग अलग यूजेस हैं, उस शब्द को भी अलग अलग प्रकार में उस शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है. तो वो सारे उपयोग अगर हमको पता नहीं है तो हम शब्द का अर्थ पता नहीं रहे. हमको शब्द का अर्थ पता नहीं है. ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए. विटगेनस्टाइन वॉर्न्स अगेंस्ट. विटगेनस्टाइन वॉर्न्स अगेंस्ट मतलब हम जब भाषा के किसी शब्द का मतलब समझने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस में विटगेनस्टाइन ने हमको दो चेतावनियां दी हैं. पहली चेतावनी क्या है? मीनिंग of a word, meaning of a word is some object in names. ये गलती मत करना. ये गलती क्या है कि कोई भी शब्द का मतलब उस वो ऑब्जेक्ट है जिसको वो शब्द इंडिकेट कर रहा है. गुस्सा भी एक ऑब्जेक्ट ही है. ओके, चौक भी ऑब्जेक्ट है. तो यहां पे दो चीजें है, चौक देखिए और ये ऑब्जेक्ट देखिए. ही सेज इस दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, बिकॉज चौक ये शब्द जो है वो सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा. ही चॉक्ड आउट हिज ओन कोर्स, ऐसा भी यूज कर सकते हैं आप. क्लियर? तो ये मत समझिए कि हर शब्द जो है उसका एक ऑब्जेक्ट रहेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये बिल्कुल मत सोचिए कि हर शब्द का अर्थ उस ऑब्जेक्ट तक सीमित है जो उस शब्द से इंडिकेट हो रहा है. ही सेज नहीं, मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज ब्रॉडर देन दिस. सेकेंड, warn against. Meaning of a word is some psychological feeling. नहीं, meaning of a word is some psychological feeling. He says no. क्यों? अगर ये सही है, ओके,
तो ये भी सही होगा कि ईच वर्ड ये लिखते भी जाइए आप, कैन मीन समथिंग एल्स। ईच वर्ड कैन मीन समथिंग एल्स। इसका ये मतलब होगा कि कम्युनिकेशन वुड बी डिफिकल्ट। तो आपको सारे यूजेस देखने हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। दूसरा, शब्द का अर्थ कोई मनोवैज्ञानिक भावना नहीं है, इट्स नॉट अ साइकोलॉजिकल फीलिंग। आर वी क्लियर? ओके, अगला पॉइंट लिखिए, छोटा सा माइनर हेडिंग दीजिए। हेडिंग में दीजिए, मैं एक फ्लो चार्ट बनाता हूं, वो फ्लो चार्ट आप बना लीजिए। ये फ्लो चार्ट आपको बताएगा कि विटगेन्स्टाइन के अनुसार मीनिंग को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन से तत्व हैं। When I say meaning of a word, when I say meaning of a word, what all am I referring to? First, to what object it refers to. मतलब उस शब्द से कौन सी वस्तु इंडिकेट हो रही है। ओके, सेकेंड, ये चार्ट ऐसा कैसा बनाइए आप, whether it is a slang or not। दो चीजें होती हैं, एक एक्चुअल मीनिंग होती है और एक स्लैंग होता है। स्लैंग मतलब कलोक्वल, एक्चुअल मीनिंग मतलब फॉर्मल। तो ये शब्द जिसकी आप बात कर रहे हैं वो स्लैंग है या औपचारिक भाषा है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, व्हाट इज इट्स पार्ट ऑफ स्पीच। इफ इट्स ए नाउन, इट्स एन ऑब्जेक्ट, थॉट, आइडिया और इमोशन और फीलिंग। इफ इट्स अ नाउन, ओके। इफ इट्स अ वर्ब, it is denoting an action. If it's an adjective, it's describing something else. If it's an adverb, it is telling you how an action is being done. तो एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, उसके बाद whether it carries overtones, मतलब वो वर्ड में ऐसा कुछ है क्या जो छिपा हुआ है, जैसे जो वो वर्ड से ऑब्वियस नहीं है, जैसे वो वर्ड की हिस्ट्री। आप एक इंग्लिश में जैसा कोई वर्ड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो या तो जर्मन इन्फ्लुएंस के कारण है या फिर दे आर बिकॉज ऑफ फ्रेंच इन्फ्लुएंस। देयर आर मेनी सच वर्ड्स, देयर आर मेनी सच वर्ड्स इन इंग्लिश। सो व्हेन आई से ओवरटोन्स, ऐसी कोई चीज है क्या, जैसा अगर मैं बोलूं एन अमेरिकन हु थिंक्स दैट अमेरिका इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड अ बॉल्ड हेडेड ईगल, इज कॉल्ड अ bald, sorry, spread eagle।
An American who thinks America is the best country in the world is called a spread eagle. Why? To spread everywhere. Second, bald-headed eagle is the national animal of America. तो ये हो गया वो वर्ड का ओवरटोन. तो वर्ड में ऐसा कुछ ओवरटोन है या नहीं, ये भी पता होना चाहिए. तो ये चार चीजें इंक्लूडेड होती हैं व्हेन यू टॉक अबाउट मीनिंग ऑफ अ वर्ड. इसके नीचे और लिखिए, इफ यस मतलब अगर ओवरटोन है तो वो ओवरटोन क्या है. और जरूरी नहीं कोई भी वर्ड में एक ही ओवरटोन हो, बहुत सारे हो सकते हैं. अगर ओवरटोन है तो वो क्या है. तो when you talk about knowing a meaning of a word according to Wittgenstein, these are the four things that you need to consider. Okay, once you know the meaning of a word, अगर ये सब मालूम है तो आप ये बोल सकते हैं you know enough to get by. मतलब अब आपको इतना मालूम है जिससे आप काम चला सकते हो. You know enough to get by. Okay? उसके बाद ये अगर पता है, this is to know the use. इससे आपको पता चलेगा उस शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है. And once you know the use, it means to know the meaning. It means to know the meaning. So when Wittgenstein talks about meaning, is use defines meaning, this is what he's talking about. यहां पे मीनिंग ऑफ अ वर्ड के चार चीजें आ गई. अब ये चार चीजों के बारे में हमको पता है तो हमको इतना पता है कि हम काम चला सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं. मतलब ये पता चलने का मतलब है हमें पता है कि उसका उपयोग कैसे करना है, कैसे कैसे करना है रादर. और अगर हमें ये पता है कि उस शब्द का उपयोग कैसे कैसे करना है, इसका मतलब हमें उस शब्द का मतलब पता है. आर वी क्लियर? राइट. अगला पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल. एक शब्द में बोलता हूं, उसको आप इससे नाप तोल के देखिएगा. कॉन्शियसनेस. इसके ओवरटोन में होगा कि इट इज आउट ऑफ कॉन्शियस, अंतरात्मा. इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा कॉन्शियसनेस, टू बी अवेयर, कॉन्शियंस, टू हैव मोरालिटी, बीइंग कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट. तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज कर सकते हैं. यू नो व्हाट इट रेफर्स टू एंड इट्स फॉर्मल लैंग्वेज, इट्स नॉट अ स्लैंग. अगर ये सब आपको पता है, सॉरी, अगर ये सब आपको पता है, इसका मतलब यू नो इनफ टू गेट बाय. उसका मतलब यू नो इनफ टू यूज. उसका मतलब यू नो द मीनिंग. सिंपल. क्लियर? अगला पॉइंट लिखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इनटू द ब्रेन. Scientific investigations into the brain are not directly relevant to this inquiry. Clear point है? If the scientific discoveries lead us to change our use of words, if the scientific discoveries lead us to change the use of words,
then they are indirectly relevant. They are indirectly relevant. इसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको. इंग्लिश में एक वर्ड है mercurial, right? What does this word mean? This word means a person who is of very fickle temperament, जिसकी सोच बहुत जल्दी बदलती है. ठीक है, करता कुछ और है, बोलता कुछ और है, उस तरह का इंसान, और कुछ भी कॉन्सिस्टेंटली नहीं सोचता. आज ये सोचेगा, कल कुछ और सोचेगा. उसको बोलते हैं मर्क्यूरियल टेम्पर. कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग. जल्दी से गुस्सा होएगा, जल्दी से शांत होएगा, एंड सो ऑन. तो इसका ओरिजिन है शब्द मर्क्यूरी से. क्यों? क्योंकि आपके पास अगर मर्क्यूरी का थर्मोमीटर है, आप उसको फोड़ के देखिएगा, उसमें से मर्क्यूरी का एक छोटा बॉल बाहर निकलेगा. वो बॉल को आप पकड़ने की कोशिश कीजिए, आप पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप उसको छुओगे वो फॉर्म बदलेगा और वो आपके पकड़ में कभी भी नहीं आएगा. ठीक है, तो ये है मर्क्यूरी, और ये प्रॉपर्टीज अगर किसी व्यक्ति में हैं तो उस व्यक्ति को मर्क्यूरियल कहा जाता है. If these properties exist in a person, then that person is known as mercurial. Good. Now, if scientific discovery tells us that that happens to mercury only in a few cases, it's not a general property, और mercury को हाथ लगा तो फॉर्म बदलता है, this is not a property of mercury, this is because of some other factors. तो अब ये फैक्ट इस्टेब्लिश होगा, धीरे धीरे स्प्रेड होगा, तो लैंग्वेज में कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा आपको, तब जाके ये वर्ड का मीनिंग शायद बदलेगा या ये वर्ड होगा ही नहीं. तो साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिमेंबर, इस तरह से इनडायरेक्टली मीनिंग को इंपैक्ट कर सकते हैं अगर साइंटिफिक डिस्कवरीज में कुछ अलग मिला तो. अदरवाइज दे डोंट हैव एनी इंपैक्ट. ओके, पॉइंट समझ गया? अगला पॉइंट लिखिए. मीनिंग ऑफ अ वर्ड, meaning of a word is a matter of what we do with our language. Meaning of a word is a matter of what we do with our language. It is not something hidden inside anyone's mind or brain. Not something hidden inside anyone's mind or brain. ठीक है, अगला पॉइंट. फिलॉसफी is linguistic and conceptual analysis. Philosophy is linguistic and conceptual analysis. Science is concerned with, ये मैं पूरा क्यों लिख रहा हूं, इसका कारण है, concerned with discovering facts. Science is concerned with डिस्कवरिंग फैक्ट्स. ओके, तो ये मैंने यहां लिख दिया है. फिलॉसफी इज लिंग्विस्ट कंसर्न विद लिंग्विस्टिक एंड कंसेप्चुअल चेंजेस. साइंस इज कंसर्न विद डिस्कवरिंग फैक्ट्स. जैसे ही मैंने ये लिखा, मैंने एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है. अगला पॉइंट लिखिए, एक्सेप्शन. वन एक्सेप्शन टू द मीनिंग इज द वर्ड इज. One exception to the meaning is the word is. अगला पॉइंट इसी में लिखिए, the word is used with two different meanings. The word is used with two different meanings, but the meaning is not its use. The word is used with two different meanings, but the
but the meaning is not its use. इससे क्लियर नहीं होगा, मैं एक और चीज बताता हूं. Water is clear. Water is H2O. Water is clear. Water is H2O. अब मैंने is 2 बार यूज किया है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी चीज वाटर की प्रॉपर्टी बता रही है क्या मुझे? नहीं, ये सिर्फ इसके साथ होता है, ऐसा विटगेन्स्टाइन का कहना है. लिख लीजिए इसके आगे ये 2 सेंटेंसेस लिखिए, फिर लिखिए देयर आर 2 डिस्टिंक्ट यूजेस एंड मीनिंग ऑफ द वर्ड. अगला पॉइंट, what is accidental and what is essential. What is accidental and what is essential depends on how we use it. Depends on us and how we use it. अब ये आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग एंड यूज का, क्योंकि ये हमने अगर हमारे जीवन में भी इंप्लीमेंट किया, फिलॉसफी वही है जिसको इंप्लीमेंट की जा सके, तो हमने वो हमारे जीवन में भी इंप्लीमेंट किया, सच में शांति बनी रहेगी. लिखिए, व्हेन अ पर्सन सेज समथिंग, व्हेन अ पर्सन सेज समथिंग, what he oblique she means, when a person says something, what he oblique she means depends not only on what is said, depends not only on what is said, but also on the context in which it is said. But also on the context in which it is said. Surrounding gives the word importance, point, and meaning. Surrounding gives the word importance, point, and meaning. ठीक है? तो दिस इज फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस में मीनिंग एंड यूज के बारे में जो बोला गया है. अगला हेडिंग दीजिए प्लीज. लैंग्वेज गेम्स एंड फैमिली रिजेम्बलेंस. लैंग्वेज गेम्स एंड फैमिली रिजेम्बलेंस. इसमें पहला पॉइंट लिखिए. इसमें विटगेन्स्टाइन मेनली बोलते हैं कि लैंग्वेज का यूज हम जब किसी और के साथ बात करते हैं, उसको कुछ करने के लिए कन्विंस करते हैं या उसको कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम एक भाषा का खेल खेल रहे हैं. ठीक है? और ये खेल समझना मतलब फिलॉसफी समझना. तो ये किस तरह का खेल है देखेंगे. लैंग्वेज गेम्स इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय विटगेन्स्टाइन. लैंग्वेज गेम्स is a simple concept developed by Wittgenstein. It refers to simple examples of language use. It refers to simple examples of language use and the actions into which language is woven. Simple examples of language use and the actions into which language is woven.
Next point. Language games are games people play to gain acceptance of their ideas. मैं भी शायद आपके साथ एक लैंग्वेज गेम खेल रहा हूँ विटगेनस्टाइन के अनुसार, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारे अलग अलग ऑपोजिट चीजों पे आपको कन्विंस किया है, तो हो सकता है मैं भी आपके साथ एक लैंग्वेज गेम खेल रहा हूँ. लैंग्वेज गेम्स आर गेम्स पीपल प्ले to gain acceptance of their ideas. To gain acceptance of their ideas. तीसरा पॉइंट लिखिए. According to Wittgenstein, the term language games, according to Wittgenstein, the term language games designates forms of language simpler than the entirety of language itself. It contains forms of language language simpler than the entirety of language itself. मतलब language games उन forms की बात करता है जो भाषा का हिस्सा है, पूरे भाषा का की बात नहीं करता, और इन हिस्सों को समझ के आप भाषा समझ सकते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द एक्शंस इनटू विच इट इज वोवन. इट कंसिस्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द एक्शंस इनटू विच इट इज वोवन. समझने की कोशिश कीजिए ये पॉइंट को. A says to B, drink. ठीक है, अच्छे से समझाता हूं. A है, B है और C है. A B और C को बोलता है ड्रिंक. B opens a bottle that he has and drinks. C opens the bottle that he has, pours it into a glass and drinks. ठीक है? There is a C who goes to a nearby tap and drinks. And there's a D who goes to the refrigerator, takes out a bottle, opens the lid and drinks. तो A ने वर्ड एक ही यूज किया है, लेकिन उसके एक्शंस बहुत अलग अलग हो सकते हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट ही सेज. It consists of language and the actions into which it is woven. ये सारे actions में common क्या है? Drink. Right? तो आप जब language games की बात करते हैं तो ये होता है. शब्द और चारों में जितने भी reactions हैं, जितने भी actions हुए हैं, उसमें वो शब्द कहाँ है? This is a language game, according to Wittgenstein. Speaking a language is an activity or a form of life. Speaking a language is an activity or a form of life. There are some things, अगला point, there are some objects in which there is some common feature. ऐसे कुछ objects होते हैं
दोनों ऑब्जेक्ट्स में कोई कॉमन फीचर होता है। हम समझ रहे हैं कि फैमिली गेम्स क्या है ये पॉइंट में। मोस्टली ऐसी कुछ ही चीजें हैं जहां पे कॉमन फीचर है। ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली थिंग्स आर कनेक्टेड by a series of overlapping similarities. Generally, things are connected by a series of overlapping similarities where no one feature is common to them. Where no one feature is common to them. This is called family resemblance. This is called फैमिली रिजेम्बलेंस। अब इसको लैंग्वेज गेम्स क्यों बोला गया है, तो ही ड्रॉज एन एनालॉजी। जस्ट लाइक देर आर रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ओके, देर आर रूल्स of a game, there are rules of a game. When you say something, okay, you are actually making a move. When you say something, you are actually making a move. That's why Wittgenstein uses the term language games. एक गेम के रूल नियम होते हैं, भाषा के भी नियम हैं। आप जब भाषा का उपयोग करके कुछ बोलते हैं तो आप, इसका एनालॉजी क्या है, गेम में आपने आपकी कोई चाल चली है। ठीक है, फिर एक चार्ट बनाइए लैंग्वेज गेम्स। दो तरह के लैंग्वेज गेम्स की बात विटगेन्स्टाइन ने की थी। द फर्स्ट, दिस इज ही कॉल्स द बिल्डर्स लैंग्वेज गेम। The builder's language game। और दूसरी चीज होती है रेगुलर लैंग्वेज गेम। बिल्डर्स लैंग्वेज गेम और रेगुलर लैंग्वेज गेम। ये क्या होता है, आप फर्ज कीजिए अ बिल्डर एंड हिज असिस्टेंट। इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। अकॉर्डिंग टू विटगेन्स्टाइन देयर आर ओनली 4 terms in which these two communicate: block, pillar, slab, that's it। इसके बाहर उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। स्टाइल डज नॉट मैटर हियर बिकॉज टोन डज नॉट मैटर हियर, सिचुएशन डज नॉट मैटर हियर। क्यों? ब्लॉक का मतलब ब्लॉक ही होगा, पिलर का मतलब पिलर ही होगा, स्लैब का मतलब स्लैब। मतलब पता है असिस्टेंट को क्या डालना है। बीम मतलब असिस्टेंट को पता है क्या करना है या किस चीज की बात हो रही है। ओके, सो दिस इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का स्कोप नहीं है।
बहुत ज़्यादा लैंग्वेज गेम का स्कोप नहीं है. सो दिस इज बिल्डर्स लैंग्वेज गेम. अब रेगुलर लैंग्वेज गेम्स, ये आपको समझेगा अगर आप भारत के न्यूज चैनल्स गौर से देखेंगे तो. अब मैं अगर कोई इवेंट की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट हैज हैपेंड, मैं लैंग्वेज के साथ क्या गेम्स खेल सकता हूं. देखिए, आई कैन रिपोर्ट एन इवेंट इस चीज का इनॉग्रेशन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी गए और उन्होंने अपने भाषण में ये कहा, हो गया. आई कैन स्पेक्यूलेट अबाउट एन इवेंट. चालीस साल के वर्ष के इंतजार के बाद अंततः ये चीज बन के तैयार हो गई. इसका पूरा श्रेय इस सरकार को, इस व्यक्ति को जाता है. जो 25 साल से अटका पड़ा था उसको इन्होंने बता दिया. उन्होंने अपने भाषण में ये कहा कि इसका मतलब ये है कि पूरे इससे इनको अगले चुनाव में फायदा होगा. वही चीज के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये पूरा भी स्पेक्यूलेशन हो गया है. ठीक है. इसमें तीसरा टाइप है फॉर्मिंग और टेस्टिंग a hypothesis. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी के पॉलिटिकल इंक्लिनेशंस डिस्कस पता करने हैं. आपके पॉलिटिकल कुछ भी हो, अब आपको किसी और के पॉलिटिकल इंक्लिनेशन पता करने होते हैं और उसको पता नहीं चलना चाहिए, तो यूजुअली हम ऑपोजिट बात से शुरू करते हैं. अरे डिमोनिटाइजेशन बहुत ही घटिया एक्सरसाइज थी, नहीं? तो ये मैंने भाषा को यूज करा. भाषा के साथ में एक स्पर्धा चल रही है. आई एम प्लेइंग अ लैंग्वेज गेम. ये एक और तरह का लैंग्वेज गेम है, फॉर्मिंग और टेस्टिंग हाइपोथेसिस. मेकिंग अप अ स्टोरी, ये अलग तरह का लैंग्वेज गेम है. रीडिंग अ स्टोरी, ये अलग तरह का लैंग्वेज गेम है. ऐसे कई सारे लैंग्वेज गेम्स हैं. ठीक है, लेकिन इन सब से ये चार्ट ऐसा का ऐसा बनाइएगा आप लोग. इन सब से एक चीज जरूर होती है और वो चीज है brings out the openness in our possibilities in using language. इसके नीचे लिखिए, ऐसा एरो बना के, brings out the openness in our possibilities, brings out the openness in our possibilities in using language and in describing it. In using language and in describing it. तो ये होते हैं लैंग्वेज गेम्स. आई होप इट्स क्लियर. ओके, आखिरी 3 पॉइंट लिख लीजिए. इंस्टेड ऑफ जनरलिटी, family resemblance is a more suitable analogy for connecting particular uses of a word. Family resemblance is a more suitable analogy for connecting particular uses of a word.
अगला पॉइंट, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ कोर, instead of searching for a core, we should travel with, instead of searching for a core, we should travel with the word's uses. तीसरा पॉइंट, फैमिली, आखिरी पॉइंट इसका, फैमिली रिजेम्बलेंस एग्जिबिट्स अ लैक ऑफ बाउंड्रीज, family resemblance exhibits lack of boundaries and a distance from exactness, and a distance from exactness. अब जैसा ये पांचों चीजों में ओवरलैपिंग सिमिलैरिटीज है लेकिन कॉमन फीचर नहीं है, ऐसा विटगेन्स्टाइन का कहना है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी चीज हो, ये दो चीज आप ले लो फॉर एग्जांपल, इनमें से दो कोई भी चीज हो, एग्जैक्टनेस से आपको दूर लेके जाती है फैमिली रिजेम्बलेंस, राइट। क्यों, ये जरूरी क्यों है फैमिली रिजेम्बलेंस पे ध्यान देना? क्योंकि एग्जैक्टनेस डज नॉट एग्जिस्ट। सो मेनी फिलोसोफर्स इन सो मेनी सेंचुरीज हैव tried to find exactness, they have been unsuccessful, which means exactness maybe does not exist in the use of language. Exactness, because if exactness would have existed, we would have found it by now. This shows that possibly exactness does not exist in the use of any language. Therefore, these things will take you away from exactness, and that is what is needed so that we can have a much more holistic concept of what is the truth. This is what Wittgenstein said. I hope it's clear. Okay. लेक्चर का आखिरी पार्ट लिखिए, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस पे सवाल आ चुके हैं। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। आपके सिलेबस में जो लिखा है दैट इज क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज, लेकिन इसको प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट भी कहा जाता है। अब ये क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज है क्या? बेसिकली विटगेन्स्टाइन का कहना है कि निजी भाषा नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। There can be nothing called as private language. What is a private language? A private language is a language which can be understood only by the speaker and nobody else. ठीक है, विटगेन्स्टाइन का बोलना है कि ऐसी भाषा एग्जिस्ट ही नहीं करती, पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज उन्होंने पहले प्राइवेट लैंग्वेज को डिफाइन करा, और क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकती इसके दो आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए थे। तो हम पहले देखेंगे कि कम्युनिकेशन का बेसिस है ये। लिखिए, कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल इफ, कम्युनिकेशन वुड बी इम्पॉसिबल इफ, या आप लिख रहे हैं प्राइवेट लैंग्वेज या क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज। Communication would be impossible if A, there is no sharing of certain attitudes towards the thing around us. A, there is no sharing of certain attitudes towards the things around us. B, there is no sharing of a sense of relevance. B, there is no sharing of a sense of relevance. And C, we do not respond in similar ways. We do not respond in similar ways. जैसा कॉन्सेप्ट ऑफ कलर लीजिए, अगर आपका और मेरा
ग्रीन कलर का कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया, अगर आपको याद होगा तो कोई और संदर्भ में। अगर आपका और मेरा ग्रीन का रेफरेंस पॉइंट ही डिफरेंट है तो हम दोनों को ये बोर्ड अलग कलर का दिखेगा। या अगर आप ये बोर्ड देख रहे हो, मैं भी ये बोर्ड देख रहा हूं और हम दोनों अग्री करते हैं कि ग्रीन है, इसमें दो अजम्पशंस है। हम दोनों, मेरे को लग रहा है कि आपको ये ग्रीन ही दिख रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे को ये ग्रीन ही दिख रहा है। पॉइंट इज, ये इतनी ऑब्वियस चीज है कि हम कभी आपस में कंफर्म नहीं करेंगे, बराबर है। दो अजम्पशंस है इसमें। सबसे पहले, आपकी आंखों में मेरी आंखों में फर्क नहीं है, तो हम दोनों को चीज वही दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज, आपके माइंड में ग्रीन का कॉन्सेप्ट और मेरे माइंड में ग्रीन का कॉन्सेप्ट सेम है। विटगेन्स्टाइन का कहना है कि इतनी कॉमनैलिटी अगर नहीं रही तो कम्युनिकेशन नामुमकिन है, क्योंकि आप सब कुछ नहीं बता सकते हो। गॉट द आइडिया। और ये चीज तो हर चीज, अब मैं बताऊंगा कि वो झाड़ के पत्ते का कलर का रेफरेंस लेके आपको मैं समझाऊंगा ग्रीन है। अरे तो झाड़ का पत्ता भी तो अपने को सेम ही दिखना चाहिए ना, नहीं तो वो रेफरेंस किस काम का। तो कहीं ना कहीं ये टर्म्स में, ये कॉन्सेप्ट्स में, ये वर्ड्स में कॉमनैलिटी की बहुत जरूरत है, नहीं तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉसिबल। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? ओके। जो आपने ABC लिखे उसका एग्जाम्पल लिखिए, जो पॉइंट लिखा था। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस अग्री ऑल द टाइम, all of us agree all the time on what color things are. All of us agree all the time on what color things are. Such an agreement is a part of our concept of color. Such an agreement is a part of our concept of color. Regularity in these concepts and their application is a part of language. मतलब इसको आप लैंग्वेज के यूज से सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के यूज के लिए जरूरी है, नहीं, लैंग्वेज ही ये है। इट्स नॉट अ नेसेसरी प्री कंडीशन, इट्स अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। गॉट द आइडिया? लिखिए, रेगुलरिटी इन दिस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन इज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज, नॉट अ नेसेसरी प्री कंडीशन। Regularity in these concepts and their application is part of language, not a necessary precondition. Not a necessary precondition. फिर लिखिए, Wittgenstein explains private language in the following words. Wittgenstein explains private language in the following words. Into inverted commas लिखिए, the words of this language are to refer to, the words of this language are to refer to what can be known only to the speaker. What can be known only to the speaker. Semicolon. To his immediate
private sensations, to his immediate private sensations. Therefore, no other can understand this language. Therefore, no other can understand this language. समझ गया प्राइवेट लैंग्वेज क्या है? अगला पॉइंट लिखिए. Wittgenstein argues that such a language cannot exist. Wittgenstein argues that such a language cannot exist. However, same point, however, he does not present his arguments in a coherent form. मतलब कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये क्रिटिक ऑफ प्राइवेट लैंग्वेज है विटगेंस्ट मेरा, ऐसा कहीं उन्होंने लिखा नहीं है. तो हमने जो भी हम इसमें पढ़ेंगे प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट में, दिस इज रिटन इन फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशंस एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दे हैव बीन कोलेटेड टू फॉर्म दिस कॉन्सेप्ट. लिखिए. However, he does not present his arguments in a coherent form. Hence, there is considerable dispute. Hence, there is considerable dispute about the nature of the argument and its implications. ओके अब उनका आर्ग्यूमेंट क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए. सपोज मैं कोई सेंसेशन की बात करता हूं, ठीक है, एनी सेंसेशन, लेट अस से मैं ये जब देखता हूं, ठीक है, तो मैं अपने माइंड में एक मार्क कर लेता हूं जो सिर्फ मेरे को समझेगा, और ये मार्क है हैशटैग. अब अगली बार जब मैं ट्री देखूंगा मेरा कौन सा सेंसेशन एक्टिवेट होगा? हैशटैग. ये प्राइवेट लैंग्वेज का एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि वो ट्री का सेंसेशन मैंने मेरे दिमाग में उसके लिए लैंग्वेज हैशटैग रखा है. ये सिर्फ मुझे पता है ना, ये और किसी को भी नहीं पता. तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं इसको. यहां से उसका प्रूफ चालू होता है. ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट आप लिख लीजिए. सपोज point number 1, suppose some recurrent sensation is associated with the word S. दूसरा पॉइंट लिखिए. अब मुझे आपको समझाना है कि मैं जब हैशटैग बोलता हूं तो मेरा मतलब क्या है. पर ये अगर मुझे आपको समझाना है तो मुझे कुछ तो टर्म्स यूज करने पड़ेंगे ना, जिसकी आपकी और मेरी समझ सेम है. प्राइवेट लैंग्वेज की धज्जियां उड़ चुकी हैं ऑलरेडी. ये मेरे को अगर एक्सप्लेन करना है टू यू, दिस हैशटैग, दिस सेंसेशन ऑफ हैशटैग, that is the private language. If I have to explain it to you, I'll have to refer to some terms which are understood in the same way by both of us, which destroys the concept of a private language. Simple proof. तो दूसरा पॉइंट लिखिए. S cannot be defined using other terms or say hashtag in this example. आपने एग्जाम्पल में एस लिखा है तो एस लिखिए, एग्जाम्पल में हैशटैग लिखा है तो हैशटैग लिखिए.
S cannot be defined using other terms because then S cannot be defined using other terms because then it would not be a private language. It would not be a private language. ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट लिखिए, one may use an ostensive definition for S. One may use an ostensive definition for S. ऑस्टेंटिव डेफिनेशन क्या है? ब्रैकेट में लिखिए, conveys the meaning of a term by pointing out examples. Conveys the meaning of the term by pointing out examples. I'll take you to a tree. Point to the tree and say hashtag. That's an ostensive definition. Why? Because I am defining it by pointing out some examples. However, an ostensive definition is not useful. ठीक है, वाई। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए, वाई इज एन ऑस्टेंसिव डेफिनेशन नॉट यूजफुल। पॉइंट नंबर 1, पार्टिसिपेशन इन ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, participation in an ostensive definition presupposes an understanding of the process and context involved. ब्रैकेट में लिखिए form of life, of the process and the context involved. ब्रैकेट में लिखिए form of life. Second, it can be interpreted differently in different cases. It can be interpreted differently in different cases. मतलब पहला, मैं जब उसको बुला रहा हूं, पॉइंट कर रहा हूं, तो मैं कोई चीज पॉइंट करके हैशटैग बोल रहा हूं, तो वो पॉइंट करना और मेरे हैशटैग बोलने का लिंक तो मालूम होना ही चाहिए ना उसको। अगर उसको मतलब कुछ ना कुछ तो कॉमन पार्ट है ही ना। दूसरी चीज, मैं पॉइंट करके, ठीक है, ट्री का एग्जांपल इसमें, हाँ, मैं पॉइंट करके उसको बोल रहा हूं हैशटैग। मैं ये हाइट पे हूं, सपोज ट्री की हाइट 3 फीट, ये इतनी है, मैं ये हाइट पे हूं, वो बंदा ये हाइट पे है। फर्क दिख रहा है आपको परसेप्शन का? ये दूसरा प्रॉब्लम है, कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस। दैट इज व्हाई प्राइवेट लैंग्वेज इज नॉट पॉसिबल। लिखिए, हेंस, अगला पॉइंट, देयर इज नो क्राइटेरिया। एक और एग्जाम्पल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम होती है? मेरे को किसी को कॉन्सेप्ट बताना है कि इसका मतलब क्या है, तो 2 ग्लास रखे हुए हैं पानी के 2 ग्लास रखे हुए हैं, ठीक है, और मैं किसी को ये पानी के ग्लासेस के पास लेके जाता हूं और बोलता हूं दिस इज 2। उसको थोड़ी पता मैं क्वांटिटी बता रहा हूं,
ठीक है। हो सकता है अगली बार वो उसको लगेगा कि मैं ग्लास बता रहा हूं, उसको थोड़ी पता मैं क्वांटिटी बता रहा हूं। रिमेंबर 2 प्राइवेट लैंग्वेज मैंने अज्यूम करा है। तो व्हेन आई शो हिम दिस 2 ग्लासेस एंड से दिस इज 2, जरूरी थोड़ी है कि वो काउंट करके ही 2 को समझेगा, वो ग्लास को भी तो 2, क्योंकि दिस इज बोल रहा ना मैं, तो मैं जिसको ग्लास समझता हूं वो उसको 2 समझ सकता, मतलब उसको पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि इसको ग्लास बोलते हैं। हाँ तो ठीक है, उसको पता है इसको ग्लास बोलते हैं और मैंने बोला दिस इज 2। हो सकता है मैं कलर की बात कर रहा हूं, ऐसा वो सोच सकता है। ये कहां बोला है कि क्वांटिटी की। द मोमेंट यू से कि ही नोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी, इसका मतलब आपको जाके उसको 2 बताना ही नहीं है, आपका स्टेटमेंट ही सुपरफ्लुअस हो गया। क्लियर? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट लिखिए, हेंस देयर इज नो क्राइटेरियन, hence there is no criterion for correctness of such an ostensive definition. There is no criterion for correctness of such an ostensive definition, and therefore private language cannot exist. And therefore private language cannot exist. बट जैसा मैंने बोला था, 2 इंटरप्रिटेशंस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, लिखिए 2 इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। बस इसके बाद आज का लेक्चर काफी छोटा रहेगा। 2 इंटरप्रिटेशंस ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट। सबसे पहला लिखिए मेमोरी स्केप्टिसिज्म। क्या है ये? झाड़ देखा हैशटैग, रिकरिंग सेंसेशन की बात हुई थी, पहला सेंटेंस पढ़े तो झाड़ देखा हैशटैग, झाड़ देखा हैशटैग, झाड़ देखा याद नहीं आ रहा, खत्म, थियरी कोलैप्स हो गई। लिखिए मेमोरी स्केप्टिसिज्म। वन माइट मिस रिमेंबर द सेंसेशन, वन माइट मिस रिमेंबर द सेंसेशन and therefore there can be no criteria of using S in each case. One might misremember the sensation and therefore there can be no criteria of using S in each case. इसमें सब पॉइंट लिखिए। व्हेन आई से सेम सेंसेशन, व्हेन आई से सेम सेंसेशन, आई एम रिलाइंग ऑन माई मेमोरी विच माइट फेल मी। व्हेन आई से सेम सेंसेशन, आई एम रिलाइंग ऑन माई मेमोरी which might fail me. Hence I have no criteria for knowing, hence I have no criteria for knowing that the sensation I have now is indeed S. अगला पॉइंट समझ गया ये क्राइटेरिया। अगला पॉइंट, हाउएवर दिस इंटरप्रिटेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, हाउएवर दिस इंटरप्रिटेशन हैज बीन क्रिटिसाइज्ड on the grounds that it can apply to public language also. Has been criticized on the ground that it can apply to public language also.
If one person can misremember, everyone can misremember. If one person can misremember, every person can misremember. तो ये memory skepticism जो है, according to criticism, it is not eliminating only private language, it is eliminating public language also. तो ये क्रिटिसिज्म का रिस्पॉन्स क्या था, अगला पॉइंट लिखिए. हाउएवर, विटगेनस्टाइन्स आर्ग्यूमेंट इज नॉट अबाउट मेमोरी. हाउएवर, विटगेनस्टाइन्स मेन आर्ग्यूमेंट इज नॉट अबाउट मेमोरी. दूसरा लिखिए, मीनिंग स्केप्टिसिज्म. मीनिंग स्केप्टिसिज्म थीम क्या है ये स्केप्टिसिज्म का? अ प्राइवेट ऑस्टेंसिव डेफिनेशन. प्राइवेट भी है, ऑस्टेंसिव भी है, याद रखिए. व्हाट इज ऑस्टेंसिव हमने पहले लिखा था, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग बाय पॉइंटिंग देम आउट. अ प्राइवेट ऑस्टेंसिव डेफिनेशन कैन नॉट लीड टू अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट. A private ostensive definition cannot lead to a meaningful statement. Cannot lead to a meaningful statement. अगर पब्लिक ऑस्टेंसिव डेफिनेशन में मेमोरी का प्रॉब्लम होता है तो क्या होगा, लिखिए. इन केस ऑफ अ पब्लिक ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, even if something is misremembered, in case of a public ostensive definition, even if something is misremembered, one can ask questions and come to a conclusion. Even if something is misremembered, one can ask questions and come to a conclusion. ए और बी पब्लिक ऑस्टेंसिव डेफिनेशन, दोनों झाड़ देख रहे हैं. सडनली अरे ये वही झाड़ था क्या? हाँ, झाड़ का मतलब ये होता है, तो झाड़, हाँ बराबरी. तो कुछ ना कुछ सवाल पूछ के यू कैन ऑलवेज कम टू अ कंक्लूजन इन केस ऑफ पब्लिक ऑस्टेंसिव डेफिनेशन. यू कैन नॉट डू दैट इन केस ऑफ अ प्राइवेट ऑस्टेंसिव डेफिनेशन. लिखिए अगला पॉइंट. दिस इज नॉट पॉसिबल इन प्राइवेट लैंग्वेज because it is not possible, this is not possible in private language because it is not possible to provide an explicit definition. Because it is not possible to provide an explicit definition. The only definition is private. The only definition is private. And that is the definition that is being questioned. समझ में आ गया? Okay. The only definition is private, and that is the definition which is being questioned. तो basically प्राइवेट लैंग्वेज क्रिटिक ये बोलता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऐसी कोई भाषा ही नहीं है विच इज इंटेलिजिबल ओनली टू द स्पीकर. बिकॉज ऐसी कोई भाषा रही तो कम्युनिकेशन इम्पॉसिबल हो जाएगा, कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है. और क्यों? वो आर्ग्यूमेंट के दो इंटरप्रिटेशन. दिस इज द प्राइवेट लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट. क्वेश्चंस लिख लीजिए. अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है. पहला लिखिए, एक्सप्लेन विटगेनस्टाइन्स आर्ग्यूमेंट्स. Explain Wittgenstein's arguments against the possibility of private language. Explain Wittgenstein's argument against possibilities of private language. 150 words, 10 marks.
150 words, 10 marks. अगला point लिखिए. Bring out the significance of language games. Bring out the significance of language games in Wittgenstein's use of theory of meaning. Significance of language games in Wittgenstein's use of the theory of meaning. Are we clear about this? Okay. तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, आज का लेक्चर छोटा ही रहेगा. That's about it for today. Thank you very much and take care.